Hello students, very welcome to all of you. So today we are going to move on to the next part of the topic, that is type 7. We are doing complex numbers. Complex number का ये type 7 आज हम start करने वाले हैं. That is nothing but Argand's diagram or also known as complex plane. अब definition देखो, a diagram which represents the complex numbers by points in a plane with reference to real and imaginary axis is called as an Argand's diagram. Don't worry, I'll explain everything. पहले आप ये note down कर लो. सबसे पहले definition कि Argand's diagram exactly होता क्या है, ठीक है? So what it says, students, a diagram which represents a complex number by the points in a plane. ठीक है? तो अब मान के चलो, let us take it down. Let z equal to x plus iota y be a complex number. Now, please remember students, अभी तक हमने जब भी complex number लिया है, we have taken a plus iota b or a plus b iota. Now, instead of writing down a and b, we will write down x and y. So z is equal to x plus iota y be a complex number. आप लिख लो where x and y belongs to set of real numbers and iota is defined as under root of -1. ये उसके conditions है. जैसे हम लिखते थे a plus iota b is a complex number, a and b belongs to r and iota equal to under root of -1. सेम चीज यहाँ पे instead of a and b we are using x and y क्योंकि अभी हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करना है. तो पॉइंट इज ऑलवेज रिटन एज x, y, इसीलिए x y हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, चलो राइट डाउन टिल हियर. इसके बाद आप लिख सकते हो राइट डाउन. देन द पॉइंट p x, y, then the point p x, y represents a complex number z equal to x plus iota y. तो x plus iota y को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है by a point, so it is represented by a point p, उसको नाम दिया है हमने x, y से. So please write down till here, then we'll move ahead. Now students, we all know that x is the real part of the complex number and y is called as the imaginary part of the complex number. तो आप लिख लो x is called as real part of z. X is real part of z and is represented on x axis. इसको हम x axis पे represent करेंगे and y is called as imaginary part of z and it will be represented on y axis. So x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number. इसीलिए x axis को हम real axis बोलेंगे and y axis को हम imaginary axis बोलेंगे. I will write down, don't worry, जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना उसमें मैं लिख दूंगा आपके रेफरेंस के लिए. ओके, राइट डाउन. आप ये लिख लीजिए, तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. नाउ व्हाट विल डू, वी विल ड्रॉ ओवर हियर, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम. तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है. तो दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा y एक्सिस है. दिस इज अवर y o y dash. Now x axis is called as the real axis.
इसको हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो हम रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज imaginary axis. Why? Because y is the imaginary part of z, और y हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, इसलिए इसको हम y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे और x एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल डू, लेट अस टेक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स which will be represented in the 4 quadrants. आपको पता है when we draw the coordinate axis, the plane gets divided into 4 parts and these 4 parts are called as the quadrants. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम। तो लेट अस टेक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एज z। तो चलिए लिखिए z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल टेक इट एज z1। हाँ, खाली नाम दे दिया उसको, z1 इज minus x plus iota y. Then let us take z2 minus x minus iota y, and last complex number let us take it as z3 which is x minus iota y. अभी z के लिए we will take point p. p के coordinates क्या होंगे, x comma y, x written over here, y written over here. Then z2 के लिए let us take it as point p1. तो p1 का x coordinate, तो it will be minus x comma y, ठीक है, minus x comma y। ये p1 के coordinates है, minus x comma y। p2 के coordinates क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, p2 के coordinates will be minus x comma minus y, और p3 के coordinates हो जाएंगे x comma minus y। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट p, उसके लिए पॉइंट p से रिप्रेजेंट करेंगे। z1 को पॉइंट p1 से रिप्रेजेंट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को पॉइंट p2 से रिप्रेजेंट किया, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z3 को हमने पॉइंट p3 से रिप्रेजेंट किया। नाउ एज वी नो, इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P x कॉमा y। P1 x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो पॉइंट P1 यहाँ पे है, दिस इज पॉइंट P1। x नेगेटिव y नेगेटिव, तो दिस इज अवर पॉइंट P2, एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो दिस इज अवर पॉइंट P3। So point P, P1, P2, P3, they lie in respective quadrants. ठीक है, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए आप इसको। So I repeat what we have done, a diagram which represents a complex number by points in a plane with reference to real and imaginary axis. X axis को हम real axis बोलेंगे क्योंकि x coordinates हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, एंड y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे क्योंकि y वाला पार्ट हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। एज वी ऑल नो, x is called as the real part of the complex number and y is called as the imaginary part of the complex number. So z is equal to x plus iota y, we have taken it as a complex number. You know, previously अभी तक हमने complex number को a plus iota b लिया था, but instead of a and b, now we will be using x एंड y। इसी फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स आएंगे, तो आपको देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक से फॉर एग्जांपल 3 + 5 आयोटा रिप्रेजेंट इट इन द आर्गन्स डायग्राम, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या उसको आर्गन्स प्लेन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको आर्गन्स डायग्राम भी बोलते हैं, इसको आर्गन्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द problems which are dependent on Argand's diagram। ये लिख लीजिए आप यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है।
if z is equal to 3 plus 5 iota is given, then represent z bar minus z bar in the Argand's diagram. Okay, चलिए लिखिए solution for the third problem. अब टेक्स्ट बुक में ऐसा एक ही एग्जाम्पल है, बट चेंज हो सकता है एग्जाम्पल, डोंट वरी. तो लिखिए सबसे पहले क्या है, वी वांट z. तो व्हाट इज z, लिखो z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अयोटा. फिर उसके बाद z बार. नाउ एज वी नो z बार मींस इट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z. तो 3 प्लस 5 अयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस 5 अयोटा. उसके बाद क्या चाहिए, माइनस z. तो इसका माइनस टाइम्स, तो इट विल बी माइनस 3 माइनस 5 अयोटा एंड माइनस z का कॉन्जुगेट. तो इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट विल बी माइनस 3 प्लस 5 अयोटा. अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है और फिर आर्गन्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट अस टेक दिस z के लिए, लेट अस टेक इट एज पॉइंट p. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,5. तो 3,5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फिर इसके लिए ले लेते हैं पॉइंट, नाउ व्हाट विल डू, चलो ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं पॉइंट p1. तो p1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3, -5. इसके लिए हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट p2. तो पॉइंट p2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -5. और इसके लिए ले लेते हैं पॉइंट p3 एंड p3 के कोऑर्डिनेट्स है -3, 5. तो राइट डाउन. अच्छा अभी आप देखिए ये जो पॉइंट है, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, ये जो पॉइंट है p1, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. तो दिस इज नथिंग बट फोर्थ क्वाड्रेंट. ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ये पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है. ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप वो ऑर्डर से ही लिखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. अभी हमने ऐसा अरेंज किया है, क्वाड्रेंट्स वहां पे है, डजंट मैटर, यू नो. तो चलो अभी हम आर्गन्स प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो आप लिखिए दिस इज x o x डैश. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट y o y डैश, y o y डैश. अब x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन ना. ये रियल एक्सिस है. y एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस. नाउ लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. अभी पहले प्लॉट करने से पहले आप मार्क कर लो 1, 2, 3, -1, -2, -3. नेगेटिव x एक्सिस. पॉजिटिव y एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5. राइट डाउन. ये 1, 2, 3, -1, -2, -3. दिस इज अब सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, तो दैट इज पॉइंट P 3,5. तो 3,5. तो जस्ट लेट मी प्लॉट. चलो एक दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूं मैं. 3 यूनिट्स ओवर हियर एंड 5 यूनिट्स ओवर हियर. तो 3,5 मतलब ये पॉइंट P है. दिस इज 3,5. ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट कौन सा है, -3,5. तो -3 यूनिट्स दिस वे एंड 5 यूनिट्स दिस वे. तो -3,5 यहाँ पे आएगा. एंड दिस इज पॉइंट P3 एंड P3 के कोऑर्डिनेट्स है -3,5 बराबर इसके सामने. फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में -3. थर्ड क्वाड्रेंट वाला कौन सा है, -3, -5.
तो -3 यूनिट्स दिस वे एंड -3 कॉमा -5, ये डिस्टेंस -3 और ये डिस्टेंस इतना -5, तो यहाँ पे आएगा दिस इज पॉइंट P2। P2 के कोऑर्डिनेट्स है -3 कॉमा -5 और जो लास्ट पॉइंट बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट वाला दैट इज 3 कॉमा -5, तो 3 यूनिट्स एंड देन 5 यूनिट्स दिस वे। तो यहाँ पे है दिस इज पॉइंट P1 विच इज 3 कॉमा -5, ये होगा हमारे पास। बस हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। क्या बोला था उसने हमें, रिप्रेजेंट z z बार माइनस z बार इन द आर्गन डायग्राम, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि पॉइंट P1 सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे है पॉइंट P1 सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, P2 थर्ड क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जस्ट ये तो खाली नाम दिया है उनको, P1 P2 P3, कौन सा भी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर उस क्वाड्रेंट में वो रहेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, ड्रॉ कर लो। If this is asked in exam, this will carry 2 marks. बस अभी टेक्स्ट बुक में ये एक ही प्रॉब्लम है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे, ये चेंज कर देंगे वो। 3 + 5 iota, instead of giving 3 + 5 iota, I can give you this complex number as -2 + 3 iota, -5 + 6 iota, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता हूँ मैं आपको, और ये तो आप फाइंड कर ही सकते हो, और फिर उसको हमें आर्गन्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बस आर्गन्स डायग्राम में इतना ही है, इतना ही करना है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, देयर इज नथिंग एज सच टू डू एक्स्ट्रा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद आर्गन्स डायग्राम। ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्गन्स प्लेन भी बोलते हैं इसको, आर्गन्स डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, नोट डाउन, दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक इज ओवर, टाइप 7 इज ओवर।